કાપી રામ વિઘ્ન લેજો કાપી રામ. ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. હો આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. જ્યાં લગી શ્વાસો શ્વાસ ભરું હું ત્યાં લગી તારું ભજન કરું હું. જ્યાં જ્યાં ધરતી પર વિચરું હું ત્યાં ત્યાં તારું ધ્યાન ધરું હું ધ્યાન ધરું. આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. તું રાખે તેમ રહેવું મારે તારું દીધું દેવું મારે. દુઃખ પડે તો સહેવું મારે એમાં ન કોઈને કહેવું મારે કહેવું મારે. આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. આ જગમાં તું એક જ પ્યારો તન મન નો તું એક સહારો. તું છે મારો હું છું તારો ગોવિંદ ને ના રાખીશ ન્યારો રાખીશ ન્યારો. આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. હો આ સંસારમાં આ અવતારમાં હું તો જીવું કનૈયા તારા પ્યારમાં. ગઈકાલે આપણે આપણા સત્સંગને વિરામ આપ્યો હતો 6:30 વાગે. અને ત્યારે પછી એક ક્ષતિ જે સામે આવી હતી કે રેકોર્ડિંગમાં થોડો પ્રોબ્લેમ ઊભો થયો હતો. એ પ્રોબ્લેમ કદાચ નેટવર્કના હિસાબે હતો અને ઘણા લોકોએ ફોન કરીને પણ જણાવ્યું. તો એક 5 મિનિટ એનો સમપ લઈ લઈએ એટલે એના ઉપર થોડું વિહંગાવલોકન કરી લઈએ. તો ગઈકાલનો પ્રસંગ હતો આપણા ભોલેરામ વાળો. અને ભોલેરામ જ્યારે એકાદશી માટેનો સીધું સામગ્રી લઈને જંગલમાં પહોંચે છે અને એની ધારણા પ્રમાણે આજે રામ લક્ષ્મણ જાનકી તો ખરા જ પણ સાથે ભરત અને શત્રુઘ્નજી પણ આવે છે. અને એટલે જ એણે આજે સીધા સામગ્રીમાં વધારો પણ કરાવ્યો હતો. હવે પેલા જે ભંડારી હતા આશ્રમના જે ભંડાર સાચવવાળા જેને આપણે કોઠારી કહીએ, કોઠાર સાચવે કોઠારી બને, તો આશ્રમના જે ભંડારી હતા જે કોઠાર સાચવવાળા કોઠારીજી સ્વામી હતા એમણે તરત પોતાના ગુરુદેવને જઈને ફરિયાદ કરી थी कि गुरुजी हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है. बोले क्यों? बोले देखो ना एक छोटा सा बालक है और जब भी वो आया है तो भोजन सामग्री के लिए सीधा सामान के लिए हमेशा बढ़ोतरी करवाई है.
पहले 2 जन का लिया, फिर 30 जन का, आज 5 जन का लेकर गया है। और कहता है कि अकेले रघुनाथ जी को नहीं, मैं भी खाता हूँ, रघुनाथ जी के साथ और लोग भी आते हैं, मैं तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। અને આપણે કાલે જોયું હતું કે ઘણા માણસોને આ ટેવ હોય છે, એમને સીધું સરખું ચાલે એ એમને પસંદ જ ન હોય, અવળી આદતવાળા ઘણાને નડે છે, આપણે ગઈકાલે ભજનમાં જોયું। તો ગુરુજી એને કહ્યું કે ચલો આ વખતે તો તે આપ્યું, ભલે આપ્યું, પણ હવે આવતી એકાદશીએ શું કરે છે આપણે જોશું, એમ કરીને એ દિવસ પૂરતી આ વાત ટાળી હતી। અને થયું પણ એવું જ। બોલે રામ આજે રસોઈ કરીને ભોજન તૈયારી કરીને બેઠો છે, અને ગઈ એકાદશીએ ફક્ત જે 3 જણ આવ્યા હતા એના બદલે રામ, લક્ષ્મણ અને સાથે જાનકીજી અને ભરત અને શત્રુઘ્ન પણ આવ્યા, 5 જણ આવ્યા। જમ્યા, છૂટા પડ્યા। રઘુનાથજી પાસેથી એણે આ વખતે વચન લઈ લીધું कि रघुनाथ जी, प्रभु जी, आपको इस बार तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि अगली एकादशी को कितने जना आओगे आप। रघुनाथ जी ने કહ્યું કે અમે આટલા જ જણ આવશું, બસ આ મારું વચન છે। આશ્રમમાં પહોંચ્યો, દિવસ પૂરો થયો, એક પછી એક દિવસો વીતવા લાગ્યા, અને હવે આ બોલારામ કાગડોળે આવતી એકાદશીની રાહ જોતો હોય। હવે એને આનંદ આવવા લાગ્યો કે જલ્દી એકાદશી આવે ને હું જંગલમાં જાઉં અને ત્યાં રઘુનાથજી પધારે, હું એને ભોજન કરાવું, માં સીતા આવે, લક્ષ્મણ ભૈયા આવે, બધાને બેસાડીને હું જમાડું મારા હાથનું ભોજન। એટલે હવે કાગડોળે રાહ જોતો હોય છે। એમ કરતા કરતા પ્રભુ ભજનમાં, આશ્રમની સેવામાં 12-13 દિવસ નીકળી ગયા। 14મો દિવસ આવ્યો, 15 દિવસ પૂરા થયા, અને એકાદશી આજે દશમ છે, આવતીકાલે એકાદશી છે। રાતે ઊંઘ નથી આવે, કોઈ સારું કામ કરવાની તાલાવેલી જાગે ને ઊંઘ ના આવે। મનમાં એક જવાબદારી લઈને આપણે જ્યારે સૂઈ જઈએ ત્યારે આપણને ઊંઘ ના આવે, અનિશ્ચિતતા લાગે કે આવતીકાલે આ કાર્ય થશે કે નહીં થાય, આવી બધી ગડમથલમાં આપણે ઊંઘી ન શકીએ। એમ પેલો બોલેરામ પણ રાતે સૂઈ શકતો નથી। આવતીકાલે એકાદશી છે, અને એકાદશીનો દિવસ આવી ગયો, બીજે દિવસે સવારે જલ્દી નાહી ધોઈ લીધું, અને નાહી ધોઈ અને ગુરુજીની રજા લઈ લીધી कि गुरुजी आप आज्ञा दो तो मुझे वहां पहुंचकर भोजन बनाना है, रघुनाथ जी आएंगे, रघुनाथ जी को खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा, आज एकादशी आप तो जानते ही हो। गुरु जी के अच्छा बालक, जाओ भंडारे से ले लो जो लेना है, भंडारे से ले लो। भंडारी पासे गयो અને ભંડારીને હાસ્યથી ધીમા અવાજથી કહ્યું, भंडारी जी जय सियाराम। बोले जय सियाराम। बस आज एकादशी और आप तो जानते हो मुझे जंगल में जाकर भोजन बनाना है, नदी किनारे जाकर भोजन बनाना है, वहाँ रघुनाथ जी भी आएंगे। पिछली बार 3 का लेकर गया तो 5 जन आ गए, अब 5 जन है तो आप एक काम करो, एक आध गिनती ज़्यादा करके थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दे देना, एक आध गिनती ज़्यादा करके दे देना। रघुनाथ जी आने वाले हैं, भोजन का सामान ज़्यादा चाहिए, ये बातें होती रही। भंडारी जी ने कहा कि बोलेराम 1 मिनट आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आश्रम में पहुंचा गुरु जी के पास, और भंडारी जी ने कहा कि देखो गुरु जी, मैंने कहा था ना इस बार भी वो बढ़ोतरी करना चाहता है, इस बार भी वो कह रहा है कि और 1-2 जन बढ़ गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप थोड़ा सा सीधा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सामान बढ़ा दीजिए उसमें। गुरु जी ने कहा एक काम करो, आज उसको 7 नहीं 8 शेर आटा दे दो, और उसी मात्रा में चावल दे दो, उसी मात्रा में आप उसको दाल दे दो, उसी मात्रा में आप मसाले दे दो, सब दे दो। आज मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा और अपनी आँखों से देखूँगा कि ये बोलेराम करता क्या है। बोलेराम क्या करता है वो मुझे देखना है, आप फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर
आज अपनी आंखों से देखूंगा कि वो इतना सामान लेकर क्या कर रहा है, जब भोजन करने वाला सिर्फ वो अकेला ही है। रघुनाथ जी को सिर्फ भाव देना है, भाव से भोजन करवाना है, आखिर में तो उसको ही करना है। मान लो कि उसके साथ कुछ एक दो मित्र हैं या तो वहां घूमने वाले हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन मुझे आज देखना, आप फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर वहां देख लूंगा। जब गुरुजी ने भंडारी जी को ये कहा तो भंडारी जी को तसल्ली हो गई। उसने आकर गुरुजी की आज्ञा जो थी, उस आज्ञा के अनुसार भोले राम को 8 सेर आटा दिया, साथ में चावल, साथ में दाल, साथ में और कुछ सीधा सामान जो भी देना था सब कुछ दे दिया। अब भोलेनाथ बहुत राजी हुआ। आज तो मन में उसने भी कुछ करने की सोच ली थी, ठान ली थी, और जंगल में पैदल जाने लगा। अब जैसे ही आधा घंटा पौने घंटे का रास्ता था, चल कर जाओ, तो वो अपनी मस्ती में जा रहा है। और मस्ती भी कैसी, भगवान का स्मरण, प्रभु स्मरण, भगवान ना नाम स्मरण में जे मस्ती आवे ने बीजा कोई में वस्ती ना आवे। मारा पुनीत महाराजे लख्यु छे ने कि हरि रस लाग्यो रेहो मीठो, आवो रस में कदी न दीठो। बीजा रस तो कड़वा ने खाटा, पीता आवे परिणाम माठा। देवना अमृत जीवता राखे, हरिरस हरिना शरणा आपे। आ एक ज रस एवो छे કે જેમાં કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ ન થાય, એમાં આનંદ 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 જ આવે। ભગવાનનું નામ લઈએ અને એનો જે નશો ચડે, એનો જે કેફ ચડે, એ આખો અલગ પ્રકારનો હોય। આજે એવો અલગ પ્રકારનો કેફ ચડે આને કે મનમાં ઉતાવળ અને જતા જતા રસ્તામાં એક જ વિનંતી, એક જ વર્ણન, ઉનકી રહેમત કા ઝુમર સજા હૈ, कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। तेरे दर से न जाऊं मैं खाली, तेरे दर से न जाऊं मैं खाली। बात आकर यहाँ पर अड़ी है, बात आकर यहाँ पे अड़ी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। प्रभु मस्ती में मस्त ये भोले राम पहुंच गया नदी किनारे, जहां हर एकादशी के दिन उनका जो कार्यक्रम बनता था। लेकिन आज उसके मन में भी उसने कुछ सोचा था। वहां जाते ही जो आश्रम से सामान, जो खाना पकाने के लिए जो सामग्री थी, जो सीधा सामान था, वो वहीं पेड़ के नीचे रख दिया और मन ही मन उसने कह दिया कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, आज बैठ जाऊंगा। भले मुझे रघुनाथ जी ने ये कहा है कि हम उतने ही आएंगे जितने पिछली एकादशी में आए थे, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े मायावी है।
कुछ न कुछ माया करते रहते हैं। ये बड़े कौतुकी है, कुछ न कुछ कौतुक होता ही है उनका। आज मुझे देखना है। वहां सामान रख दिया और राह देखने लगा कि जब रघुनाथ जी आए, पहले मैं देख लूं कितने जन आ रहे हैं, उसके बाद भोजन बनाऊंगा। ये सोचकर वो अपना एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर भोले राम। अब हर एकादशी में जिस समय रघुनाथ जी पहुंचे थे, वो समय धीरे धीरे नजदीक आया। अब रघुनाथ जी ने आज तो इनकी पुकार के लिए भी ठहरना उचित नहीं समझा, बस निकल पड़े, क्योंकि आज तो जाना ही है, क्योंकि उनको भी तो आज माया करनी थी। रघुनाथ जी जब उस जहां भोलेराम बैठा था, उस भोलेराम के स्थान तक आने लगे, तो आज उनके साथ माँ सीता जी थी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, ये सब आ रहे थे। और आते ही जब उनकी आहट सुनी, आते ही जब उनकी आवाज़ सुनी, तो आंख खोली भोले राम ने, तो सामने सबको देखा। सामने रघुनाथ जी को रघुनाथ जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, माँ सीता जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, पीछे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न देखे। लेकिन जब और पीछे देखा तो साथ में देखते ही उसके मुंह से निकल गया, मुझे पता ही था प्रभु आप कुछ ना कुछ कौतुक करोगे। बोले क्या हुआ? बोले आपने पिछली बार कहा था कि हम पांचों आएंगे, इस बार तो ये बंदर को भी उठा के लाए। ये बंदर है कौन? हाँ, वो बंदर नहीं है। बोले कौन है? अरे वो तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी? हाँ, हनुमान जी तो नाम तो सुना है, लेकिन अब उनको लाने की आवश्यकता क्या थी? आपने तो कहा था हम 5 जन आएंगे। मुझे पता था आप कुछ न कुछ कौतुक करोगे। बोले चलो भोजन कर लेते हैं। बोले भोजन बनाया नहीं है प्रभु, देखो सामने सामान पड़ा है, सामग्री सामने ही सीधी रखी हुई है। मुझे पता था कि आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ। आप बड़े मायावी हो, आप बड़े कौतुकी हो। अब यदि खाना है तो ये सामग्री पड़ी है, भोजन बनाओ और अपना पाओ और अपना खाओ, बस। आज मैं नहीं बनाऊं। जब मैं ये करूंगा तभी आपको अगली बार एहसास होगा कि जो कहते हैं वो ही करना चाहिए। अब भोले राम रूठ गए, रूठ कर वो पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठ गए। रघुनाथ जी भोले राम को देखते हैं, वहां जो सामग्री पड़ी है, भोजन बनाने का जो सामान पड़ा है, उसके ऊपर देख रहे हैं। और रघुनाथ जी को लगा कि भोले राम आज बड़े गुस्से में हैं, आज मैं कुछ कहने जाऊंगा, मनाने जाऊंगा, वो मानेंगे नहीं। और उन्होंने मुस्कुराकर सीता मैया को कहा कि सीते महारानी, आप तो अवध में महारानी हो, यहाँ नहीं हो, अपना शुरू कर दो भोजन बनाने का। माँ जानकी जी ने भी हंसते हंसते भगवान रघुनाथ जी को कहा जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। सीता जी वहां भोजन बनाने के लिए बैठ गए। बाजू में भरत जी भंडारी बनकर बैठ गए। जो सामान था उस सामान को हाथ में लिया और आटा, चावल, दाल, मरी, मसाले, नमक, गुड़ वगैरह अलग अलग करने लगे। लखन भैया लकड़ी लेने जंगल चले गए। शत्रुघ्न भरत जी के बाजू में बैठकर उनको मदद करने लगे। हनुमान जी हाथ में पात्र लेकर, हाथ में घड़ा और मटका लेकर नदी में पानी भरने चले गए। सब अपने अपने काम में लगे हैं। यहां जब रघुनाथ जी ने देखा सब हाथ में अपना अपना काम लिए हुए भोजन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भोजन तैयार हो रहा है, और भगवान ने सोचा कि मैं भी थोड़ा कुछ काम कर लूं, तो उन्होंने हाथ में झाड़ू उठा लिया। भगवान ने हाथ में झाड़ू उठा लिया। कितना सुहाना दृश्य था। हाँ, और ये तो भगवान है। अपने भक्त के लिए एक भजનમાં કહ્યું છે ને કે ભગવાન કેવા કષ્ટો સહ્યા છે ભક્તો માટે, જીવો ભાવ તેવા થયા છે ભક્તો માટે। ભગવાને કેવા કષ્ટો સહ્યા છે ભક્તો માટે। આવ્યા તીર્થવાસી જુનાગઢ મુકામે, નાગરોએ રવાના કીધા નરસિંહને ધામે।
લખી હુંડી નરસિંહે શામળ શાન નામે, હે લખી હુંડી નરસિંહે શામળ શાન નામે, ત્યારે શેઠ બની વાહલો આવ્યા છે ભક્તો માટે, શેઠ બની વાહલો આવ્યા છે ભક્તો માટે, પગે ચાલી બોડાણો દ્વારિકા જાતો, ધરી તુલસી એ હૈયે હરખાતો, રણછોડ આવ્યો ડાકોર વિજય એનો થાતો, એ રણછોડ આવ્યો ડાકોર વિજય એનો થાતો, ત્યારે ગોમતીજીના જળમાં સંતાયા ભક્તો માટે, ગોમતીજીના જળમાં સંતાયા ભક્તો માટે, ભગવાને કેવા કષ્ટો સહ્યા છે ભક્તો માટે. સાસુ સખુ કાજે એ સખી થઈ ગયા હતા, ઘરકામ કરવા એ જાતે રહ્યા હતા, સાસુ કેરા શબ્દો વહુ થઈને સહ્યા હતા, સાસુ કેરા શબ્દો વહુ થઈને સહ્યાતા, રૂપ એનું લઈને બંધાયા ભક્તો માટે, કે રૂપ એનું લઈને બંધાયા ભક્તો માટે, ભગવાને કેવા કષ્ટો સહ્યા છે ભક્તો માટે. ગોરાએ પત્નીને સખી કરી સાપી, ત્યારે સાસુએ દીકરી બીજી એને આપી, હાથ એને અડતા તરત નાખ્યા કાપી, એ હાથ એને અડતા તરત નાખ્યા કાપી, ત્યારે ચાકર થઈને ઘડવા રહ્યા હતા ભક્તો માટે, ચાકર થઈને ઘડવા રહ્યા હતા ભક્તો માટે. જ્યારે જ્યારે ભક્તોને આવે ઉપાધિ, ત્યારે ત્યારે વાલે વિખેરી છે આંધી, રામ ભક્ત કાજે ઉભા છે કેડ બાંધી, રામ ભક્ત કાજે ઉભા છે કેડ બાંધી, છોડી શેષ સૈયા દોડ્યા છે ભક્તો માટે, છોડી શેષ સૈયા દોડ્યા છે ભક્તો માટે, ભગવાને કેવા કષ્ટો સહ્યા છે ભક્તો માટે. ભક્તો માટે પરમાત્મા શું નથી કર્યું? નરસિંહ મહેતા માટે સામળસા શેઠ બનીને આવ્યા, ગોરા કુંભાર માટે કુંભાર બની અને પોતાના ગરુડને ગધેડો બનાવી અને લક્ષ્મીજીને કુંભારણ બનાવીને સાથે આવીને ચાકડો ચલાવ્યો. સખુ માટે પોતે સખુના સ્વરૂપે વહુ બની અને થાંભલે બંધાયા અને સાસુની સોટી ખાધી. એક એક કિત્યા, એક એક પ્રસંગ તપાસો, પોતાના ભક્ત માટે શું કર્યું છે. અને એટલે જ અહીંયા ભોલે રામ માટે હાથમાં ઝાડુ ઉપાડી લીધું. जब रघुनाथ जी ने हाथ में झाड़ू ली और झाड़ू लेकर वहाँ का सफाई का काम शुरू कर दिया, वहाँ सीता जी भोजन बना रही है, भरत जी भंडारी बनकर उन्हें सारा सीधा सामान दे रहे हैं, यहाँ लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, वहाँ हनुमान जी पानी भर कर आ रहे हैं और यहाँ शत्रुघ्न भरत जी की मदद कर रहे हैं. ये सुहावना दृश्य देखने के लिए गगन मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर विश्वकर्मा इत्यादि देवाधिदेव सब इकट्ठे हो गए और अकेले नहीं है, अपनी पत्नियों को लेकर आए. पत्नियों को लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी. हे मालिक, हे त्रिलोकीनाथ, ये आपकी कौन सी लीला है? और भगवान आशुतोष तो इतने प्रसन्न हुए, महादेव जी इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि सबको पता है रघुनाथ जी के इष्टदेव महादेव जी है और महादेव जी के इष्टदेव रघुनाथ जी है. और जब भगवान आशुतोष ने ये दृश्य देखा और त्रिलोकी के मालिक जो है उनके हाथ में झाड़ू देखा, धन्य हो गए. प्रभु, आपकी ये लीला किसके समझ में आएगी? आप अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं. हम धन्य हो गए प्रभु. वहां से पुष्प वृष्टि हो गई ये दृश्य देखते देखते, और जैसे ही पुष्प गिरे भगवान समझ गए. उन्होंने आकाश की तरफ अपना हाथ उठाया, अपनी आंखें उठाई और वहां देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सबको देखा. उन्होंने वंदन किए, प्रणाम किए और ये दृश्य परिपूर्ण हुआ. रसोई तैयार हो गई और जैसे ही खाना बना, भोजन बना, तो उस
अब भोजन बनाया था किसने? हाँ? जगत जननी माँ भवानी स्वरूप सीता जी के हाथ से बना था। जो अवध की रानी, अवध की साम्राज्ञी थी, अयोध्या की महारानी थी, उनके हाथ से ये भोजन बना था। तो परिणाम ये हुआ कि सीता जी, जानकी जी के हाथ से जो भोजन बना था, उस भोजन की खुशबू सारे जंगल में फैलने लगी। कहा जाता है कि वहां कुछ बहुत सिद्ध महात्मा तप कर रहे थे। वर्षों से उनकी, सालों से उनकी तपस्या चल रही थी, किसकी समाधि चल रही थी। उस समाधि में लीन, उस तपस्या में लीन महात्मा जी के पास जब ये खुशबू पहुंची, तो खुशबू पहुंचते ही उनकी तपस्या टूटने लगी। भोजन कहीं हो रहा है, और ये भोजन अलौकिक भोजन हो रहा है, क्योंकि ये भोजन ने हमारी तपस्या भंग कर दी है। जो अगल बगल में ये साधु महात्मा तप कर रहे थे, वो खड़े हो गए। उस खुशबू को पीछे पीछे, उस सौरभ के पीछे पीछे चलने लगे, तो वहां आकर रुके जहां मां जानकी जी भोजन बना रहे थे। और जैसे जानकी जी के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी, तो वहां पहुंचे सारे महात्माओं ने रघुनाथ जी का, सीताराम का जयकारा लगाया और वहां हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मैया हम पे कृपा करो, थोड़ा सा भोजन हमें भी दे दो। ये प्रसाद हमारे नसीब में कहां, ये भोजन हमारे नसीब में कहां। विनती करने लगे और ये कोलाहल हुआ, वहां आवाजें आने लगी। तो जो पेड़ के नीचे भोलेराम बैठा था, भोलेराम की आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें खुली और सामने वाला दृश्य जो देखा, तो वो भी एकदम अचंभित हुआ, क्योंकि रघुनाथ जी को देखा, रघुनाथ जी, जानकी जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको तो देखा था। आज जो नए सभ्य आए थे हनुमान जी, उनको भी देख लिया था। अब बाकी रहा ये महात्मा जी को भी देख लिया। तो उसने मन ही मन सोच लिया कि खलास, आज एकादशी करनी पड़ेगी। हाँ? आज हमारे गुरु जी ने हमारे लिए बस राजी होना है। क्यों? जो हर एकादशी में ये सोचते हैं कि भोलेराम कब से एकादशी करना चालू कर दे, बस आज से शुरू हो जाएगी हमारी एकादशी। आज तो हमारे लिए भोजन बचना ही नहीं है, बस नक्की हो गया, क्योंकि इतने जन हैं, ये साधु महात्मा भी आ गए, उनका भी भोजन लगेगा, वो खा लेंगे, तो हमारे लिए तो कुछ बचना ही नहीं है। चलो जो है एकादशी कर लेंगे। भोलेराम ने मन ही मन जब कह दिया, तो यहाँ रघुनाथ जी ने भोलेराम को मनाया कि भोलेराम जी आ जाओ। नहीं प्रभु आप भोजन कर लो। नहीं, आज तक तो हर एकादशी को पहले हमने किया, बाद में आपने किया है भोजन, लेकिन इस एकादशी को तो एक विशेषता है, क्योंकि मेरे साथ पूरा दरबार आया हुआ है, तो आपको भी हमारे साथ भोजन करना पड़ेगा। रघुनाथ जी ने और माँ सीता जी ने, माँ जानकी जी ने भोलेराम को हाथ पकड़कर वहाँ पेड़ के नीचे से उठाया है, और उठाकर अपने बाजू में बिठाया। जो भोजन बना था वो सारा भोजन आज सब लोग मिलकर खा रहे हैं। आज राम दरबार तो बैठा ही हुआ है, लेकिन साथ में वो महात्मा जी बैठे हुए हैं, साथ में भोलेराम खुद बैठे हुए हैं, और माता जी के हाथ से, सीता जी के हाथ से, जानकी जी के हाथ से बना हुआ भोजन आज सभी लोग खा रहे हैं। इस भोजन में जो स्वाद है, इस भोजन के लिए क्या शब्द कहें। हाँ? ऐसे लग रहा है कि सब खड़े होकर नाचने लगे। ये भोजन खाते खाते, ये भोजन ग्रहण करते करते ऐसे लगा कि मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, हिमन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, के मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, हिमन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। वहां बैठे हुए सारे